Atma Namaste, everyone. So, as per plan, every Saturday I'm thinking एक टॉपिक जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम आएगा उस पे बात होगी and then it would be uploaded on my YouTube. So, जो लोग unfortunately सेशन के दौरान नहीं आ सकते या आपको सेशन बहुत अच्छा लगा and you want to share it with your friends, of course, they all can like and subscribe my channel and you all also can spread the word around. ठीक है? अक्सर जिंदगी में क्वेश्चन आता है कि डेस्टिनी ज्यादा काम करती है या फ्री विल काम करता है, हमारे एफर्ट्स काम करते हैं या सिर्फ गॉड्स ग्रेस काम करती है. सो टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रूथ कि किधर क्या हो रहा है. सो सबसे पहले मैं अपनी जिंदगी का एक एग्जाम्पल लेती हूँ. So there was a time, so I got married at the age of 20 and I was in first year and the next year I got pregnant और मेरा second year of college था. Okay. And I was very unhappy because doctors had not allowed me to give exams. उनको मेरा कुछ health issues था and they said, I was very tiny minute also तब. So they said being so young, you should not go in for your exams and you should drop. And I being the topper, throughout my life, one of the toppers, okay, I was very upset कि भाई ये क्या हो गया, मेरे एक failure आ गया life में and I was really very upset and I was crying. I was so young कि मुझे वो बच्चे का नहीं पड़ा था, मुझे ये था कि मेरे life में मेरी पढ़ाई में एक break आ गया. So जैसे तैसे वो साल चला गया. मुझे पहले लगा कि मेरे उस मार्कशीट में failure आ जाएगा, but then later on medical दिया and it was like ठीक है. And then the next year I appear for the exam and see I was a topper, तो एक style होती है पढ़ने की. I gave my 100%. I gave my exam. Second year हो गया. I scored good marks. And then third year आया, मैंने फिर से exam दिए. मैंने अपना effort किया. I was married. मेरा 2 साल का बेटा उस समय था. Lot of other things which needed my focus at that time of life. But when I was preparing for my exams, I did my 100% and I was not bothered about the result. No aspiration, no hopes. Just कि मुझे graduation complete करना है. And then, उसमें भी 2-4 points और है जो मैं आपके साथ share नहीं करना चाह रही कि कैसे क्या मैंने किया, good karma and all that. But let's come to the gist of the thing. Result आता है. And can you beat this? I stood first in my college. I was gold medalist and I was like so surprised क्योंकि मैंने वैसी पढ़ाई नहीं की थी, मेरा वो focus नहीं था, कुछ भी नहीं था. Just I did my effort and I stood first in my class. Now इसको क्या बोलेंगे? इसको destiny बोलेंगे, इसको effort बोलेंगे या इसको free will बोलेंगे? अब इसके अंदर एक hidden कहानी. जब मैं second year में थी, मेरी best friend और मैं, we both were toppers, okay? And when I was in second year, मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया एग्जाम देने, so I was drop out. So my friend, she stood first in the college, and अब हम दोनों में competition नहीं था. तो जब मैं second year की एग्जाम दे रही थी, उसने अपने सारे notes मुझे दे दिए. So I got, यहाँ क्या काम हुआ? Destiny का हुआ. मुझे वो सारे नोट्स मिल गए. मेरे पास कम टाइम था. I was married, I had a kid, I had in-laws, joint family, so टाइम कम था. तो मुझे मेरी डेस्टिनी की वजह से वो सारे नोट्स मिल गए दोनों साल, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई स्टूड फर्स्ट. अगर मैं उस दोस्त के साथ रहती, वो अनमैरिड थी, उसका एफर्ट मुझसे ज्यादा होता, तो मैं नहीं फर्स्ट आ पाती. बट डेस्टिनी वाज देयर. सो ये एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि अगर उस समय मैं बीमार नहीं होती, मैं रुकती नहीं, तो मैं सेकेंड ही आती, वो फर्स्ट आती. बट गॉड and destiny and good karma and there are so many factors in this. So ये एक कहानी जो मेरा life experience है, और ये भी मुझे कब समझ में आया? After like 10-15 years I came to know कि that fine day there was a God's will which was much more than what I was willing, because I was not planning to stand first in college, you know. मेरा कोई plan नहीं था, मेरा सिर्फ plan था कि graduation करना है.
एफर्ट पूरा डाला. दिस व्हाट आई डू. अभी भी ये जो सेशन ले रही हूँ, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालती हूँ व्हेनेवर आई टेक अ सेशन. सो दिस वाज वन पार्ट. फिर एक बार रामायण में लॉर्ड रामा अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव बताइए, क्या किस्मत सब कुछ है, क्या डेस्टिनी सब कुछ है, या पुरुषार्थ सब कुछ है? तो गुरुजी कहते हैं उनको कि ये दोनों एक ही पेड़ के फल है. डेस्टिनी एंड फ्री विल एक ही पेड़ के फल है. जिसमें ताकत ज्यादा, वो इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा. और यहां पे एक चीज काम आती है कि उस ताकत को कैसे जाने. हाउ डू वी डिकोड दिस कि हमारे लिए एट पर्टिकुलर टाइम व्हाट इज वर्किंग मोर, इज इट डेस्टिनी, इज इट फ्री विल? तो यहाँ पे एक और स्टोरी आई वुड लाइक टू से. सो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या हुआ, ये ताकत आपको कैसे मिलती है कि डेस्टिनी ज्यादा काम कर रही है, फ्री विल ज्यादा काम करती है? ये ताकत आपको मिलती है बाय योर पास्ट लाइफ कर्मा. ओके, अगर पिछले जन्म में, चलो इस पास्ट लाइफ को भी नहीं सोचते, हम ऐसे ही सोचते हैं, अगर आपने आम का पेड़ लगाया है, क्या आपको तुरंत आम मिल जाता है? नहीं मिलता ना. आपको 5-7 साल बाद आम मिलते हैं, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहते हैं. अंटिल अनलेस उस ट्री को कोई चॉप नहीं करता, पीढ़ी दर पीढ़ी काम होता है. वहीं आपने चावल का बीज बोया है, इंस्टेंट आ जाता है. तो अब दो लोग हैं, ए एंड बी. ए ने चावल का बीज लगाया, इंस्टेंट उसके चावल उग गए, उसने बेचा, पैसा मिल गया. अब बी पर्सन ने आम का पेड़ लगाया एंड ही सल्किंग, ए को तो इतना प्रॉफिट मिल गया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, मेरा तो पेड़ ही नहीं होगा. क्योंकि भाई आपने आम का पेड़ बोया है, आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस है. सो यहाँ पे थोड़ी सी फ्री विल काम आ जाती है कि व्हाट आर यू डूइंग. सो एफर्ट्स एंड फ्री विल, according to my understanding, according to the research, according to the study, what I feel, they are either side of two coins. हमें जिंदगी में luck without efforts और efforts without luck are the reason of failure. Okay? अगर उस समय जैसे आप पानी में डूब रहे हैं और आप वहां बैठ के उस पर सोचो, अगर मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मैं बच जाऊंगा, और अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा है तो मैं कोई एफर्ट ना करूं, तो भाई मरना तो लिखा ही है उस समय. आपको हाथ पांव मारना है. अब वो हाथ पांव मारते हुए प्रोसेस में किसी ने आपको देख लिया, वो आ गया, दैट ऑल कम्स इन डेस्टिनी पार्ट. बट यू जस्ट कांट सिट एट दैट मोमेंट ऑफ लाइफ थिंकिंग कि भाई मेरी तो डेस्टिनी में जो लिखा है वो होगा. You have to put your efforts. Okay? अब efforts भी बहुत तरह के होते हैं. सही तरीका, वो सब कुछ चीजें एक और कहानी है. अब ये सेशन मेरा लेने के पीछे 2 रीजंस. वन रीजन, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर. तो जिस पल आप बॉर्न हुए हो, उस समय आपकी एक पथरी बन गई है, और उस पथरी के अंदर What is mightier is there? क्या आपका एफर्ट ज्यादा माइटी है आपकी जिंदगी में, कि आप मेहनत ज्यादा करोगे तो आपको फल मिलेगा, या आप इतनी सी मेहनत करोगे, गुडविल आपके पास इतनी है, गुड लक आपके पास इतना है. ये आप सबकी पथरी में. आज जो ये 47 लोग आए हैं इस सेशन में राइट नाउ, उनका कुछ तो डेस्टिनी था, सारे ग्रुप्स में थी. अब आपकी फ्री विल थी, आप इस सेशन में आओ या ना आओ, सारे ग्रुप्स में ये था. So the people who reached here, that is one part of destiny. Second part, the people who are going to use this knowledge for the betterment of their life would be another kind of destiny. So every moment आपका एफर्ट था, आपने जूम में लॉग इन किया, आप आए. अब आप इस पूरे सेशन को सुनेंगे, इसको कैसे आप डिकोड करते हैं अपनी लाइफ में, वो आपका एफर्ट होगा. एंड देन डेस्टिनी भी होगा कि कितना आप रजिस्टर करते हैं. सो जो वो पथरी होती है उसमें सब कुछ लिखा होता है. दैट इज व्हाई व्हाट आई से, टेक गाइडेंस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, और आई एम टीचिंग एस्ट्रोलॉजी फॉर दिस रीजन. यू नो, सो एक लेमैन लैंग्वेज, हम सारी हाउसवाइफ्स हैं,
हम सब ने दाल का हलवा बनाना सीखा है एट सम टाइम ऑफ आवर लाइफ. हमने दाल का हलवा, वेरी टेक्निकल थिंग इट इज, सबके बस की नहीं है बेस्ट दाल का हलवा बनाना. इंग्रेडिएंट्स वही है, दाल है, घी है, पानी है, ड्राई फ्रूट्स है, बट एवरीबडी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल. वो एफर्ट है उनका. और कई बार इसमें गुड लक भी हो जाता है कि आपने वो बादाम उस हलवे में डाला, अगर वो कड़वी बादाम हो गई, आपका पूरा हलवा कड़वा हो गया. बट अगर आपका अच्छा है तो कई बार ये होता है ना, यहाँ डेस्टिनी काम करती है. हलवा बनाना सबको आ गया, किसका कब और कौन से दिन अच्छा बना, यहाँ वो टाइम फैक्टर आता है जो आपको आपके उस एस्ट्रोलॉजी चार्ट से पता चलता है. अब आप कहेंगे कि यू आर ट्राइंग टू मेक अस सुपरस्टिशियस. नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू सुपरस्टिशियस. दीज डेज, इन दिस एरा ऑफ गूगल मैप्स, इन दिस एरा ऑफ सफारी, आप क्या देखते हो? स्विट्जरलैंड जाना है, यू टाइप इन देयर व्हाट आर द राइट सीजन, व्हेन शुड आई गो. फ्लाइट्स में आप देखते हो डील्स, ये सब हम देखते हैं. पुराने जमाने में, आज से 20 साल पहले इतना नहीं था. दिल्ली आप गए, गूगल मैप में आपने डाला आई वांट टू रीच टू चांदनी चौक, आराम से पहुंच जाते हो. वहां आता है टेक दिस लेफ्ट, यू विल नॉट फाइंड मोर ट्रैफिक, गो स्ट्रेट, यू विल रीच अर्लियर. और वहीं यू चूज नॉट टू यूज दिस गूगल मैप एंड यू गो. भाई साहब बताइए, कभी कौन अपनी बुद्धि से गलत बता देता है? ये सारा डेस्टिनी का खेल हो गया यहाँ पे. बट एफर्ट डालना जरूरी है. इसीलिए इफ यू लर्न एस्ट्रोलॉजी, यू कम टू नो कि समर सीजन में आम आते हैं, विंटर सीजन में एप्पल आती है, ग्रेप समर सीजन में आते हैं. क्या विंटर्स में आते हैं? नहीं आते. तो हमें जब ये सही समय पता होता है सही चीजें करने का, तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है. कई बार हम ये बोलते हैं नगीने पहनने के लिए, राइट? अब डेस्टिनी के द्वारा आपको बता दिया गया, बट कई बार आपने रॉन्ग टाइम पहन लिया, आपका नगीना गिर जाता है, टूट जाता है, चोरी हो जाता है. दैट इज वाई एवरी काइंड ऑफ नॉलेज, अब उसको आप कैसे यूज करें, एज अ सुपरस्टिशन और एज एक तरीके से, जैसे कि टिप्स नहीं देते, कुकिंग में भी टिप्स मिलती है ना हमको, कि अगर नमक ज्यादा पड़ गया तो ऐसे कर लो. ये टिप्स जिंदगी में एस्ट्रोलॉजी देती है आपको. अब आप उसको डराने के तरीके से ले सकते हो कि से अबाउट किसी ने जैसे आई कीप टेलिंग पीपल कि अभी आपका मर्करी रेट्रोग्रेड है, अभी आप कोई भी बिजनेस डील में मत जाइएगा. यू कैन गेट इनटू अ आर्ग्यूमेंट सिचुएशन, जहां उसका जीरो रिजल्ट आएगा, सिर्फ बहसबाजी हो जाएगी. वहीं आप 1 महीने बाद जाइए, यू विल बी सक्सेसफुल. अब अगर आप ये फॉलो करते हो, ये आपकी फ्री विल है. अगर आप ये सोचते हो नहीं मैं ये सब बकवास बातें नहीं मानता, मैं तो आज ही करूंगा, तो ये आपकी डेस्टिनी हो गई. सो एक तो ये फंडा है कि आप जिंदगी में डेस्टिनी और फ्री विल, इन सबसे ऊपर एक कहानी है. वो डेस्टिनी कहाँ से बनी? आपके एफर्ट से बनी है. पिछले जन्म में किसी का खून किया तो इस जन्म में रेपरकशन आया. इट इज कॉज एंड इफेक्ट. whatever you do you receive it. okay, so that is one part. तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी का चार्ट देख ले, उधर सब कुछ होता है कि क्या तो आप रिसीव करोगे एज अ पनिशमेंट, क्या आप रिसीव करोगे एज अ रिवॉर्ड. लाइफ बिकम्स इजियर. लीव असाइड ऑल दिस, ये भी आपको नहीं चाहिए. तो फिर हर पल हर घड़ी बी अवेयर टू डू राइट थिंग्स, राइट एफर्ट्स, सर्व पीपल. When you serve people, you serve God. And when you serve God, destiny. आपका कुछ ना कुछ भला हो जाता है. I have experienced in my life when as per astrology I had predicted something. ऐसा होगा. चलो इसमें एक कहानी सुनाते. एक आदमी अपने एस्ट्रोलॉजर या गुरुजी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे बताओ मेरी लाइफ क्या है. और गुरुजी कहते हैं तुम तो कल ही मरने वाले हो. वो आदमी घबरा जाता है. उसको लगता है ओ नो, मैं कल ही मरने वाला हूँ, चलो मैं मेरे गांव चला जाता हूँ, मेरे परिवार से आखिरी बार मिल जाता हूँ. तो वो जा रहा है, रास्ते में उसको एक भिखारी मिला, तो उसने अपना शर्ट उसको दे दिया. फिर उसको कोई और मिला तो उसने कहा भाई अब मैं तो कल मरने वाला हूँ, मुझे क्या करना है. वो उसको पैसे दे देता है. वो जब तक अपने गांव पहुंचता है
किसी के कुएं में बाल्टी घिर गई तो वो उसकी मदद करता है उस कुएं में से बाल्टी डाल के पानी सींचने में. सो व्हेन ही रीचेस हिज विलेज, वो कई सारी एक्टिविटीज कर देता है, क्योंकि उसको लगता है मैं तो कल मरने वाला हूँ, मुझे तो अब कुछ कोई भी चीज की पड़ी नहीं है. उसके पास अपनी कार होती है तो वो कहता है चल तू मुझे गांव तक छोड़ दे, फिर तू मेरी गाड़ी ले ले. ऐसा ऐसा वो करता जाता है और वो गांव पहुंच जाता है. वो बहुत सैड है, डिसहार्टेंड है, अपनी फैमिली से भी बोलता है, फैमिली भी बेचारी एजिटेट हो जाती है. एंड कल का दिन आ गया, कल का दिन बीत गया, दैट पर्सन इज अलाइव. थर्ड डे भी बीत गया, दैट पर्सन इज अलाइव. एंड दैट पर्सन गेट्स लाइक ओहो गुरुजी ने सब गड़बड़ कर दी, सब झूठ झाट बोल गए. वो वापस गुरुजी के पास जाता है. गुरुजी मैं तो जिंदा हूं, आपने तो कहा था कल मर जाऊंगा. तो गुरुजी उससे पूछते तूने क्या किया जब तुम घर जा रहे थे. तो वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है. तो गुरुजी कहते हैं हाँ तुम मरने वाले थे, बिकॉज अगेन पिछले जन्मों में जो तुमने कर्म किए उसकी वजह से एक तारीख सेट थी, इस दिन तुम मरने वाले हो. बट सिंस तुम मरने वाले थे, तुमने रास्ते में ये परोपकार करते गए, और जब तुमने ये लोगों की मदद की, तुमने एक गुड कर्मा जनरेट कर दिया. अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है, क्या हम, ये भी हमारी पत्री में ही योग होता है, ये भी एक बहुत डीपर लेवल ऑफ ट्रुथ है कि वो पर्सन ऐसा भी कर सकता था कि वहीं बैठ के रो भी सकता था कि मेरी कहानी खत्म, मैं मरने वाला हूं. बट दैट पर्सन चोज कि मैं मरने वाला हूं तो मैं ये करूं. ये सब भी उसकी पत्री में ही योग होते हैं. ओके, ही वॉज अ गुड पर्सन. सो व्हाट आई बिलीव इन लाइफ, आपकी लाइफ में अगर गुरु होते हैं, सो एक है एस्ट्रोलॉजी जहां से आपको वो पता चल जाता है जो गुरु वशिष्ठ ने बोला कि दो फल है पेड़ में, किसमें ताकत ज्यादा है, डेस्टिनी में या एफर्ट में. कई लोग आप देखते हैं क्लास में 60 बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज रहते हैं, कुछ बच्चे फर्स्ट आते हैं, मतलब देयर आर 3 चिल्ड्रन, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, तीनों के एफर्ट ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, ऑलमोस्ट जस्ट अ मार्क, एक एक नंबर से वो फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाते हैं. तो वहां वो डेस्टिनी हो जाती है. एफर्ट उन तीनों का बराबर ही होता है ऑलमोस्ट. आई हैव सीन इन माई लाइफ देयर आर पीपल जो मेरिटोरियस होते हैं और एग्जाम के टाइम उनको कोविड हो गया, उनको डेंगू हो गया, and they could not appear in the exam like I could not, and वो उस साल फ्लंक कर जाते हैं. फर्स्ट आना तो दूर की बात है. ऐसा हमारी लाइफ में होता है. तो हम क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, 2 चीजें कर सकते हैं. एक उस पत्री, सो यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम मी और एनीबडी. फिर आपको गुरु कैसे मिलते हैं वो भी आपकी पत्री में ही होता है, ठीक है. कभी ब्लफ करने वाले भी होते हैं, कभी अच्छे. एंड दूसरा, हैव अ स्पिरिचुअल गुरु इन योर लाइफ. गुरु किसको बोलते हैं? गुरु उस पर्सन को बोलते हैं जिसने वो विद्या ऑलरेडी जानी है. जैसे वी गो टू अ कुकिंग क्लास, तो जो हमारी कुकिंग टीचर है उसने ऑलरेडी वो दाल का हलवा बनाया होता है, उसको पता होता है 20 मिनट की सिकाई करनी है, फिर आपको उबला हुआ पानी उसमें डालना है, देन ओनली वो अच्छा बनेगा. उसको कंटिन्यूसली आपको स्टेयर करना है, क्योंकि लम्स नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उसने ट्राई किया है. सो गुरु इज दैट पर्सन जो उस रास्ते पे ऑलरेडी चल के आया है, और फिर वो आपको बता देता है भैया तुम ऐसे चल लो, ताकि तुम वो ठंडा पानी अगर हलवे में डाल दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा. तुमको 1 कप दाल लेनी है तो 1 कप चीनी लेनी है, अब तुमने 2 कप चीनी ले ली, वही स्पॉइल. सो हैव अ गुरु, सो दैट गुरु टेल्स यू कि जिंदगी में वर्चुअस लाइफ या फिर लीड अ वर्चुअस लाइफ. हर पल हर घड़ी बी अ वर्चुअस पर्सन. अपने एफर्ट करते रहो. लॉर्ड कृष्णा ने क्या कहा? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर. क्योंकि जब हम फल की इच्छा कर लेते हैं, जैसे कि मैं उस सेकेंड ईयर वाली क्लास में ये फल की इच्छा कर ली कि नो मैं फेल हो गई, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो फर्स्ट आने वाली थी. वो मेरे फर्स्ट आने के लिए ये प्रोसेस हुआ था कि मुझे वो साल ब्रेक लेना था, क्योंकि मुझे इजीली फर्स्ट आना, हेल्प मिलनी थी, मुझे उसके नोट्स मिलने थे. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वर्चुअस रहो,
एफर्ट्स सही रखो, क्योंकि जो आपने पास्ट लाइफ में एफर्ट्स किए उसी के एज अ रेपरकशन यू आर हैविंग समटाइम्स फ्रूट्स, समटाइम पनिशमेंट. So then remain aware at every moment of your life. वो फ्री विल बहुत छोटा है हमारे पास, बहुत बड़ा नहीं है. हाँ, आपके पास गुरु हैं जो आपको वो रास्ता दिखाने वाले हैं. या एक और चीज है, इफ यू हैव डिवाइन ग्रेस, कलयुग में डिवाइन ग्रेस, हर युग की डिवाइन ग्रेस अलग अलग होती है. सतयुग में अलग तरह से डिवाइन ग्रेस हो रही थी, कलयुग में कैसे होती है? बाय चैंटिंग, बाय मेडिटेटिंग, बाय गोइंग विद इन एंड गेटिंग द आंसर्स. इसका भी एक सेशन लूंगी मैं. हाउ डू यू नो जो आंसर आ रहा है वो सही है गलत है, या कैसे आंसर ले. बट आज लेट अस स्टिक टू दिस, दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल पीपल, हमेशा सही करते रहे. व्हेन यू विल डू राइट एक्शन, आज नहीं कल नहीं परसों, यू विल गेट अ राइट फ्रूट. बट अगर आप कोई से भी पल, क्योंकि ये हमारे पास जरा सी फ्री विल है, यू चूज टू डू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. यस, पत्री के हिसाब से भी होता है, कई बार नहीं होता, कई लोग गुस्से वाले होते हैं, वो उनकी पत्री में योग है. बट व्हेन दे कम टू मी, मैं उनको यही बताती हूँ, तुम्हें हर पल गुस्सा आएगा, हर पल, और वो गुस्से से तुम एक और कर्मा क्रिएट कर लोगे. बट नाउ इफ यू बिलीव मी, इफ यू ट्रस्ट मी, कोई भी ऐसे स्कूल में चले जाओ जो तुम्हें मेडिटेशन सिखाता है, एंड व्हेन यू विल डू मेडिटेशन, आपको वो गुस्से को दिशा देना आ जाएगा. यू नो, आई वास्तु क्लास पढ़ाती हूँ, तब मैं बताती हूँ कि देयर इज अ फायर. वो फायर से खाना भी बन सकता है, उस फायर से घर जल सकता है. चॉइस इज योर्स. सो efforts and free will both exist, and with both, क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों चाहिए. लक भी चाहिए, फ्री विल भी चाहिए. और लक आप कैसे इनहेंस कर सकते हो लाइफ में? एक तो आपने पास्ट लाइफ में किया, जो तो अलग कहानी है, वो पथरी में भी पता चल जाता है. कई बार कई लोग होते हैं जिनको बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है और फिर उनको सक्सेस मिलती है. कई बार ऐसे लोग होते हैं. So let's take an example on this note also. दो लोग हैं, A and B. उन दोनों को बताया गया है कि ये वाला एरिया है, तुम यहाँ खोदोगे तुम्हें सोना मिलेगा. A खोदता है, B भी खोद रहा है. A को 5 फीट पे ही सोना मिल जाता है, और B को इधर 50 फीट पे सोना मिलता है. इधर वो थक जाता है, ओ A को 5 फीट पे मिल गया, फिर मैंने 20 फीट खोद दिया, यहाँ कोई सोना वोना नहीं है, और वो स्टॉप हो जाता है. सो दिस ऑल थिंग्स इज देयर इन योर चार्ट, बट इफ यू डोंट वांट टू गो इनटू दिस, यू कैन ऑलवेज हैव अ गुरु. जैसे अभी आई एम लाइक अ गुरु टू यू. आई एम ट्राइंग टू टेल यू विद माय पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस कि जब ऐसा ऐसा हुआ था जिंदगी में, ऐसा ऐसा हुआ. सो अमिताभ बच्चन का एक बहुत प्यारी लाइन मुझे पसंद है कि जो आपके मन का हुआ वो अच्छा है, बट जो आपके मन का ना हुआ वो और भी अच्छा है, जैसा कि मेरी उस सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में हुआ था. सो ऑलवेज नेवर रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ. कभी भी उस डेस्टिनी को लेके विक्टिमाइज मत होइए. मेरे तो भाई भाग्य में ऐसा ही पति लिखा था, धोखेबाजी लिखा था. अरे तो आप कुछ कीजिए ना, एफर्ट कीजिए. धोखेबाज पति मिल गया क्योंकि आपने धोखा दिया होगा किसी को या इसी को, और इस लाइफ में वो आ रहा है. बट व्हाट नेक्स्ट? पूरी जिंदगी आप इस धोखे को लेके बैठे रहेंगे या कुछ करेंगे इसके बारे में? सो दिस इज वन थिंग विच वी लर्न इन प्राणिक हीलिंग. प्राणिक हीलिंग में हमारे गुरु जो हमको ना लॉजिकली साइंटिफिकली सिखा रहे हैं बहुत कुछ. आप भी अपने चॉइस से जाइए. जहां आई डोंट से कम हियर, मैं इस रास्ते पे चली हूं इसलिए मैं बता सकती हूँ रास्ता सेफ है. यू कैन ज्वाइन दिस, यू कैन लर्न एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम मी. यू विल नो कि कौन सी चीज तो भाग्य है और कौन सी चीज एफर्ट से मिलेगी आपको. कब आपको आम का बीज बोना है, कब आपको चावल उगाना है. आपने अगर कोई गलत मौसम में, गलत समय में कुछ चीजें की,
कुछ भी नहीं होगा उस समय, बट सही मौसम में सही चीज में अगर आप उस समुद्र में डूब भी रहे होंगे, आपका कोई कोई आपके पास आ जाएगा हेल्प के लिए। टाइटैनिक डूबा था ना, आपने देखा कितने सारे लोग बचे भी थे उसमें से और कितने सारे लोग मर भी गए थे। क्या था वहां? एफर्ट की गुंजाइश कम थी उस पल। एफर्ट की गुंजाइश हम सबके पास होती है, क्योंकि लाइक आई वॉज born on a particular date at a particular time, my chart was prepared, बट इस आज 47 years की हूं मैं, आज तक मैंने क्या किया वो मेरी डेस्टिनी है नेक्स्ट लाइफ की और मेरे कल की। आई हैव वैलिडेटेड इन माई लाइफ when you do right efforts, you know, आप वो जो पर्सन था ना, बी पर्सन, जिसने 20 फीट पे खोदना छोड़ दिया कि भाई इसको तो 5 फीट पे मिल गया और मुझे तो अभी तक नहीं मिला, मतलब इस जमीन में है ही नहीं सोना। वो अगर थोड़ा सा और खोदता, सोना वही था। सो जिंदगी में एज फार एज माई लिटिल अंडरस्टैंडिंग बाय माई गुरुज टीचिंग्स, व्हाट आई कैन टेल यू, एफर्ट हर पल करते रहिए, कोशिश कीजिए सही एफर्ट करें एंड कीप आस्किंग फॉर गाइडेंस। ये जो आप अब हो गए हो 57 लोग, ये जो आप 57 लोग आज आए हैं, आपने कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा होगा जरूर जिंदगी में कि क्या करें। हम सब मेस्ड अप है, मैं भी मेस्ड अप रहती हूँ लाइफ में। इट्स नॉट दैट आपको इतना ज्ञान बांट दिया तो मेरे में वो सारा ज्ञान आ गया। वी डू हैव दीज क्वेश्चंस कि डेस्टिनी है या फ्री विल है, या क्या हम मुकद्दर को लेके बैठ जाएं या हम कर्म करें। सो मेरा ये मानना है, कर्म हर पल करें। डेस्टिनी से आपको वो जल्दी मिल सकता है, लेट मिल सकता है, बट कर्म आप हर पल करें एंड सर्व पीपल। अगर आप किसी को रास्ता दिखाएंगे तो आपको रास्ता दिखाने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर आप किसी की हेल्प करेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल गेट हेल्प। सो आप जो इतने सारे लोग आज इस सेशन में हो, आपने हेल्प की है किसी की, दैट इज वाई यू आर हियर इन दिस सेशन, दैट इज वाई यू आर गेटिंग दिस गाइडेंस। नथिंग इज फ्री इन दिस लाइफ, नथिंग इज फ्री, यू मस्ट हैव जनरेटेड दिस कर्मा। अब इस सेशन का आप क्या करते हैं, दैट्स योर फ्री विल। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यार टाइम वेस्ट कर दिया, बकवास बातें हमको भी पता थी। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर उसकी लाइफ में सेकेंड ईयर में, मैं उस समय ड्रॉप आउट भी कर सकती थी। आई वॉज मैरिड, आई हैड नो एम्बिशन इन माई लाइफ, मेरा बच्चा था, मेरा घर था, परिवार था। मैं ड्रॉप भी कर सकती थी कि चलो जाओ यार, छोड़ो पढ़ाई, क्या करना है, या नेक्स्ट ईयर में कम पढ़ाई भी कर सकती थी। बट आई वॉज लाइक, वट एवर आई एम डूइंग, आई विल डू माई 100%, every moment of my time. That's also there in my patri. Okay. So, there are 2-3 things. One, you should all have guru. क्योंकि गुरु क्या करते हैं, वो रोशनी दिखा देते हैं, वो टॉर्च की तरह। तो आप चल सकते हो उस पाथ पे। And always try to be a guru to somebody. Give help, serve people. When you serve people, you serve God. And when you serve God, there is a divine grace. Okay? So this is all I wanted to share with you. जिंदगी में कभी भी लक को लेके मत बैठ जाइएगा। Luck and efforts both go in hand. So then there are people who prepare for UPSC exam. 10 lakh people UPSC का एग्जाम देते हैं, उसमें से 900 people are selected. उन 900 में से भी there are categories. 100 people become IS officer, next 100 becomes IPS, next 100 becomes IRS. मेहनत सब करते हैं। किसी के पास थोड़ी डेस्टिनी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां जो वो 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो 100 क्वेश्चंस क्या आपने पढ़े थे, और अगर पढ़े थे क्या आप रिटेन कर पाए, सारी कहानी उसी पे है। तो वो तो डेस्टिनी हो गई। बट आप एफर्ट डालिए, आप रिपीटेड पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं 7 में से 70 क्वेश्चंस तो आएंगे। बट आप डेस्टिनी लेके नहीं बैठ सकते कि मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है तुम पुखराज पहन लो, तुम सूर्य को जल चढ़ा दो, तुम ये कर लो और तुम IAS ऑफिसर बन जाओगे। आप वो कोर्स नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं बन सकते। हाँ,
आप ये पुखराज पहनोगे, आप सूर्य को जल चढ़ाओगे, आप 4 लोगों की मदद करोगे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने में, तो यस, आप उस आईआरएस से आईपीएस, आईपीएस से आईएएस, ये जंप हो सकता है आपका. दिस इज, so we all can create our destiny. But yes, there is destiny, there is free will. Free will is इतना सा. और फ्री विल क्या है? करेक्ट एफर्ट्स, सही चीजें करनी. और सही चीज क्या है? वर्चुअस लाइफ, हेल्पिंग पीपल. जस्ट दैट, just that. So I am like a spiritual astrologer. जब भी मेरे पास कोई पत्री लेके आता है, मैं उनको 10 चीजें बताती हूँ, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, आपका कर्मा मैनिफेस्ट हो जाएगा. Okay, so Atma Namaste. This was it. Have a beautiful day. Stay tuned. Like and subscribe my channel Abundance and Grace. यहाँ पे बहुत सारी बातें ऐसी ही होगी. It's life coaching type of channel कि कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाए, जिसकी एक सीरीज चल रही है Hidden Side of Things. So Atma Namaste. Do share with your friends so that they can subscribe and they can also know. Excuse me.